Today, we are honored to have Dr. Vikram Rathod sir, all the way from the Calcutta. Today, he conducted the workshop on the exosomes, and his insights on this subject impressed all of us. We are very thankful to him. Sir, request no introduction. I hand over mic to sir for a few words regarding the Aesthetic Hub and this workshop. Thank you, Dr. Pushkar, for this kind words. First, I will congratulate Dr. Pushkar, Dr. Suraj, and Dr. Shushrut. I was really amazed and impressed to see young 3 plastic surgeons working in a single room. I'm really mesmerized. And it's a big lesson to the entire country. We are so many plastic surgeons, but still struggling and working independently. I think you are the epitome, you 3 have created, and it's a big lesson to the entire fraternity, because together you can reach anywhere, any heights, and any hurdles can be cleared without any problems. Then I will say the Aesthetic Hub, the setup, the way they have curated each and every room, their OT, their lasers, the captions, I really very much attracted toward the captions which you have put, like in front of the OT, the new version starts from here. This I am going to put in my operation theater also. Really, I like this thing. And the second thing which I say nowadays, the lifestyle problems are there. So most of the people, they want to travel they want to go to a first floor or second floor, they will inadvertently use a lift. But in their clinic, on each and every step, it's written that this much calories you have burned after stepping this thing. And it is written at each and every step. So what happens? You get a positive feedback that after stepping out these many steps, I have burned at least this positive thing has come. So this really gives a very good message to all the persons who are coming like this, especially the patients, because the plastic surgeons do a lot of liposuctions, body contouring, and many of the patients, they come to doctor, weight reduction मुझे करना है, liposuction करना है. तो क्या होगा? It will be a complimentary. You do liposuction and then they will feel नहीं सीढ़ी चढ़ने उतरने से भी calorie burns होता है. So it will be very positive thing. And the way you people have organized and called all the plastic surgeons, I'll say they were seniors, they're juniors, they're contemporary also. It was really, and I was blessed that 3 of my teachers were there, whom I used to admire a lot, Dr. Pandit, Dr. Parag, and Dr. Kulkarni. And the way you have organized the thing, it was really fabulous, fantabulous, I'll say. And I'll say in a very short time, you have given this entire workshop a mini conference thing. And I congratulate you once again. Thank you, sir. Thank you once again from the core of my heart. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So it was a nice workshop on exosome, sir. Yeah. तो आप जो पेशेंट्स होते हैं या जो लोग सीख कर रहे हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, आजकल सभी लोगों को नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानना है. Yeah. तो क्या आप बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जन सर्जरी करते हैं या सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन ही बताते हैं, या उनको नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी उनके पास अवेलेबल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर सूरज में बोलूँगा कि हम लोगों की जो पहुंच है वो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक है, जो कि ना कॉमन पीपल को मालूम नहीं है. उन लोगों को लगता है कि ये स्किन लगाना जानते हैं, बर्न करना जानते हैं, कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं या लाइपोसक्शन कर ले, जो कॉमन चीजें हैं ब्रेस्ट. लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हम लोगों की पढ़ाई के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड रहता है. जो एक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहा है, वो ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं. देयर आर मैनी प्लास्टिक सर्जन्स अक्रॉस द ग्लोब जो सर्जरी भी करते हैं, लेजर भी करते हैं, एक्सोसोम भी करते हैं, पीआरपी भी करते हैं, बोटॉक्स भी करते हैं, फिलर्स भी करते हैं. तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये ना क्लियर मैसेज हमारे सोसाइटी में होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारे जो एरिया में जो प्लास्टिक सर्जन रहते हैं उनके पास जाने से मुझे सब कुछ मिलेगा. अगर मुझे सर्जरी चाहिए तो मेरे को सर्जरी भी मिल रही है और एक ही रूफ में मेरे को नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी मिल रही है.
और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, better results बिकॉज मिलेंगे। प्लास्टिक सर्जन्स नो बेटर एनाटॉमी। डेफिनेटली इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैं आपको बोलूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, सहूलियत, यस कि आपको 10 जगह नहीं दौड़ना पड़ रहा है। ये मॉल कंसेप्ट कैसे आया? यस मॉल कंसेप्ट भी यही आया कि आपको कपड़ा लेने कपड़ा बाजार जाना पड़ता था और सब्जी लेने सब्जी बाजार जाना मल्टी पड़ता था। स्पेशलिटी सेटअप फॉर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, यस लाइक So- मल्टी स्पेशलिटी Yes. हॉस्पिटल। तो मैं तो ये बोलूंगा कि ईच एंड एवरी प्लास्टिक सर्जन शुड स्टार्ट डूइंग, और इफ दे आर नॉट एट ऑल डूइंग, दो आई नो many of the plastic surgeons are doing, but they are not advertising, they are not showcasing their cases. So I will say कि every plastic surgeon should showcase their non-surgical work with mouth as well as without mouth on the digital platforms which are commonly available to everyone. Because you know the digitally आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो दुनिया के, आप अलास्का में भी डिजिटली विजिबल हो जाओगे, आप पूरे पूना में विजिबल होगे, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में, कहीं पे भी ग्लोब पे विजिबल हो कि हाँ भाई एस्थेटिक हब में 3 प्लास्टिक सर्जन है, यहाँ पे सब कुछ होता है ट्रीटमेंट। सर्जिकल वो ये मैं बोलूँ। मैं और एक बात कहना चाहूंगा सर कि जैसे कौन सी भी प्रोसीजर रहे, कौन सा भी सर्जरी रहे, तो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, विच इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ एनी प्रोसीजर। एग्री। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्लास्टिक सर्जन के पास वो कैपेबिलिटी ज्यादा रहती है, कौन सा भी अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो हैंडल करने की, पेशेंट को वो कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलने की कैपेबिलिटी बाकी सब स्पेशलिटी से प्लास्टिक सर्जन के पास ज्यादा रहती है, ऐसा मेरा कहना है। सर आपका क्या डॉक्टर- कहना है? डॉक्टर पुष्कर, आपने जो बात बोली एकदम सही है। कि क्या होता है कि हम लोग देखो 3 साल पहले एमएस जनरल सर्जरी करते हैं। एमएस जनरल सर्जरी में आपको मालूम है सर तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, रिपेयर आते हैं, ट्रॉमा आते हैं, सब कुछ होता रहता है। तो यानी हम लोग डे 1 से इमरजेंसी देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एक्यूट एब्डोमेन आया, गन शॉट इंजरी आ गई, या कट इंजरी, शॉर्ट कट इंजरी आ गई। तो वी आर फ्रॉम द बिगिनिंग डीलिंग द इमरजेंसीज। तो कहने का मतलब है कि प्लास्टिक सर्जन कॉम्प्लिकेशन आती है, पहले तो क्या है कि बिकॉज ऑफ द एनाटॉमी एंड देयर ट्रेनिंग वो लोग पहले तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं बाय द एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर टीचर्स, फ्रॉम देयर लर्निंग एंड डीलिंग विद द कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज उनको मालूम है कहाँ पे आर्टरी है, कहाँ पे नर्व है, भाई उस जगह पे आपको टच नहीं करना है, या उस जगह पे कट नहीं करना है, या वहाँ पे लेजर से बर्न नहीं करना है। सेकेंड थिंग क्या है कि इवन अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो क्या है, आप पैनिक नहीं होंगे। आपको ये मालूम है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कभी भी कोई इमरजेंसी मुसीबत आए तो अपने आप को कूल रखिए। तो वो कूल कब रख पाएंगे, जब आपने पास्ट एक्सपीरियंस में इमरजेंसीज देखी हुई है। तो ये भी एक इमरजेंसी है, अगर कुछ भी आती है तो यू कैन वेरी वेल टैकल इट विद अ कूल माइंड, और कूल माइंड से आप उसका सबसे अच्छा समाधान निकाल सकते हैं। और ये जानने वाली बात है, देखो कि वुंड माने घाव, वुंड एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सबसे कॉमन है। ये आपको भी मालूम है कि पूरी पृथ्वी पे प्लास्टिक सर्जन्स कैन टैकल एनी टाइप ऑफ वुंड इन एवरी वे। अगर उनको फ्लैप करना है फ्लैप करेंगे, अगर ग्राफ्ट करना है ग्राफ्ट करेंगे, यदि नॉन सर्जिकली हील करना है पीआरपी, जीएफसी, एक्सोसोम से, वो भी कर लेंगे, या फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स, कोलाजन है, आपके इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसिंग्स आई हैं उनसे उसको हील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये अपनी स्पेशलिटी एक ऐसी है कि जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको इजीली एंड स्मूथली टैकल कर सकती है विद प्रॉपर कॉस्मेटिक एज वेल एज फंक्शनल रिजल्ट। क्योंकि कोई भी चीज का हम लोगों को बैलेंस करना होता है, कॉस्मेटिक पार्ट भी हम लोगों को देखना है और फंक्शनल पार्ट भी। तो ये दोनों प्लास्टिक सर्जन से अलावा मेरे ख्याल से और कोई अच्छे से टैकल नहीं कर सकता है। Yes. ये मैं आपसे पूरा एग्री करूंगा। Yes, thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। Thank you so much, sir. ऑलवेज वेलकम, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू।